Hello everyone, welcome back to the session. In the previous session, we have learned how to add layers, how to arrange them, how to organize them, what are the basic properties of a layer, and how to animate them using the basic transform properties, how to add effects into a particular layer, how to adjust the values. So, after animating the layers, now we are going to proceed with text animation. That how can we create different kind of text animations here. To start with, we are going to create a new composition, and in this particular composition I'm going to choose the resolution 1920 into 1080. So we are going to create different kind of text animations here, so let's arrange them accordingly. So the very first kind of composition which we are going to create with will have the typing effect. Let's change the color of the text from white to black. For that you have to select your layer. After selecting the layer, you can come to the properties panel. Then we have the text panel just below the properties panel, and from here we can change the font, we can change the font weight, we can change the font size, and from here we can change the font color. So now I'm going to take a dark color here, and now let's start with basic animation of our text. Before starting with that, we have to understand that to apply kinetic or dynamic effect to your particular text, what we have to do is we have to always understand the effect has to be applied on the layer or on the text. So before starting with that, let's correct its spelling. It's typing, and let's change it to typing. Yes, now it is okay. तो बिफोर स्टार्टिंग विद द एनिमेशन, हम एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर लेते हैं अभी कि जो इफेक्ट आप अपने टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं, क्या वो डायरेक्टली टेक्स्ट के ऊपर लगेगा या फिर अपनी लेयर के ऊपर लगेगा. अब लेयर और टेक्स्ट दोनों सेपरेट कैसे हैं वो हम समझते हैं. पहले लेट्स मूव द एंकर पॉइंट by pressing Y. Now you know that we are having certain transform properties for our particular layer. So these properties are like the one which we can see here is anchor point, position, scale, rotation, and opacity. So if I change the position, just watch it very carefully here कि आप इसको देख सकते हैं, इसका एंकर पॉइंट अभी भी टेक्स्ट के सेंटर में है, राइट. सो अगर इसको मैं मूव करता हूँ, अपने पोजीशन की जो वैल्यू है उसको अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से स्लाइड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे लेयर मूव कर रही है, बिकॉज ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी किसकी है, लेयर की. सो जैसे जैसे मैं अपनी लेयर को मूव कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा एंकर पॉइंट भी अपने लेयर के साथ मूव कर रहा है, राइट. विच मीन्स कि अभी जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी हो रही है, लेयर की, लेयर एज अ इंडिविजुअल. अब कमिंग बैक टू दी सम बेसिक टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जैसे हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ सोर्स टेक्स्ट आता है, इसको हम कैसे एनिमेट करते हैं वो भी हम अगली कॉम्पोजिशन में देखेंगे. बट बिफोर दैट let me add some properties to the text. For that we have to go to the animate option here. Under the animate, click on this button, and we have got some different kind of properties through which we can apply the effect. हमारे पास anchor point के property है, position, scale, skew, opacity, fill, color, stroke, tracking, right. These are different kind of effects or the properties which are available there. So currently if I add the position, अब अगेन मैं लेयर के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज में जाता हूं एंड अपने पोजीशन को मूव करता हूं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंकर पॉइंट मूव कर रहा है. अब दोबारा अपने इस पर्टिकुलर पोजीशन प्रॉपर्टी में आता हूं जो हमने ऐड किया अभी रिसेंटली बाय सिलेक्टिंग द एनिमेट ऑप्शन. नाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी
is responsible to move the text only. It will have the direct impact on the text while it will not have any kind of impact on your layer, which means कि आपकी लेयर स्टैटिक रहेगी, आपकी लेयर की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा. जो भी चेंज आएगा वो पोजीशन की वैल्यू किस में आएगी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में. तो अगर यहाँ पे मैं इसको मूव करता हूँ अप एंड डाउन, so at that particular case, can you see, while I'm moving this particular text, there is no movement of the anchor point. It is still there. Reason, अभी जो करंट मूवमेंट हो रही है वो किसकी हो रही है, लेयर की हो रही है. और यहाँ पे हम मूवमेंट किसकी ऐड कर रहे हैं, टेक्स्ट की. तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो यहाँ पे इफेक्ट अभी अप्लाई हो रहा है वो किस पे हो रहा है, टेक्स्ट पे हो रहा है. सेम, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रेंज सिलेक्टर. जैसे आप यहाँ पे, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है. दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द रेंज एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ द रेंज. इट मीन्स कि इस रेंज के अंदर अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं मेरे पास, राइट, उन सभी करेक्टर्स पे जो ये प्रॉपर्टी हमने ऐड की है वो अप्लाई होंगे इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अभी ये लेयर की ओरिजिनल जो वैल्यू है वो है, और इसी को अगर मैं थोड़ा अप कर दूं या डाउन कर दूं, ठीक है, अब इसको अप कर रहा हूं, तो यहाँ पे मूवमेंट किसकी है, टेक्स्ट की, बट अभी भी लेयर हमारा कहाँ है, नीचे. और अगर यहाँ से रेंज सेलेक्टर में जाके आप देख सकते हो मेरे पास एक स्टार्टिंग रेंज है, दिस इज योर स्टार्टिंग रेंज एंड दिस इज योर एंड रेंज, विच मीन्स कि जो रेंज के अंदर अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं, चाहे वो करेक्टर हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो कोई लाइन हो, उन सब के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी आप ऐड कर रहे हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा. सो अगर मैं यहाँ से अपनी रेंज कम कर दूं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ से करंटली द रेंज इज 100, सो अगर इसको मैं डिक्रीज कर दूं, सो नाउ यू कैन सी द मोमेंट आई एम डिक्रीजिंग द वैल्यू है, जो मेरा टेक्स्ट है उसकी भी पोजीशन क्या हो रही है, अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ रही है, जो उस लेयर की ओरिजिनल पोजीशन. राइट, सो अभी आप देख सकते हो स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज दोनों सेम है, दैट्स वाई कोई इफेक्ट नहीं आ रहा आपको. बट यहीं अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो इस तरह से कुछ इफेक्ट क्रिएट होता है. नाउ दिस वाज ऑल फॉर योर पोजीशन. नाउ व्हाट इफ आई ऐड अ opacity property by clicking on the animate, and after that I choose the opacity, and under the opacity मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ बिल्कुल 0. राइट, अगेन आई विल गो टू द रेंज सेलेक्टर, एंड यहाँ से अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट को मूव करना शुरू करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट होगा. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके एक की फ्रेम ऐड करता हूँ, एंड आफ्टर दैट कुछ फ्रेम्स आगे मैं क्या करता हूँ, जैसे 1 सेकेंड का गैप ले लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट इसकी वैल्यू कर देता हूँ 100. राइट, सो अभी इसको प्ले करके देखते हैं. Just like how the typing is done, now to create more impact, let me just add a typing sound effect. यहाँ पे एक मैं ऑडियो लेके आया हूँ, उसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने लेयर पैनल पे. That is your timeline also, where we can see the different kind of layers. Now this is the waveform. If you double press L, then you can directly see the waveform. And यहाँ से आप देख सकते हो कि जो मेरी ऑडियो की ड्यूरेशन है या फिर ऑडियो जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ड्रैग करके लेफ्ट की तरफ लेके आ सकता हूँ और उसको यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ. एंड नाउ लेट्स प्ले द वीडियो. राइट, सो हमें सिर्फ इतने ही एनिमेशन चाहिए 1 सेकेंड तक, एंड उसके बाद
इफ आई वांट टू ट्रिम माय पर्टिकुलर लेयर, जैसे इसके बाद की मुझे ऑडियो नहीं चाहिए, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी लेयर को ट्रिम कर सकते हैं. फर्स्ट, we can duplicate the layer or we can trim a layer into different point. If I want that this particular layer should split into two parts, right? Split करना अलग है और layer को trim करना अलग है. अगर मैं चाहता हूँ कि ये split हो जाए, so in that particular case the shortcut key is Control Shift D or Command Shift D if you are a Mac user. अब जैसे ही आप इसको इस particular point पे आके ये command देंगे, that is your Control plus Shift plus D और कमांड प्लस शिफ्ट प्लस डी. सो इन केस अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो सेपरेट लेयर्स क्रिएट हो चुकी हैं, राइट. सो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ. अनदर मेथड इज वेयर आई वांट टू डायरेक्टली ट्रिम दिस लेयर. मुझे दो सेपरेट लेयर्स में इसको डिवाइड नहीं करना. सो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज, राइट. अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट ट्रिम करना चाहते हैं देन वी हैव टू press alt plus square brackets open, and if you want to trim from the end point then you have to press the alt plus square brackets close. So now you can see we have trimmed a particular layer, and again let's watch what kind of animation we have created, right. If I want to play this in loop, what I can do is I can simply move this work area to the left side. अब जो मेरे बेसिक एनिमेशन प्ले होगी, जो प्लेबैक मुझे मिलेगा सिर्फ इस पर्टिकुलर रेंज का मिलेगा. दैट इज़ योर वर्क एरिया जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो. तो इसको प्ले करके देखते हैं. राइट. होप सो इट इज़ क्लियर टू एवरीवन हाउ टू ऐड टाइपिंग इफेक्ट. नाउ आफ्टर दैट let's create a new composition and type 02. Now how to create a bounce effect on your particular text. So for that let's write bounce here. Again increase the size of the font a little bit, and after that let's arrange the anchor point to the center. Now again I will go to the text. अब यहाँ पे बाउंस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए we can apply the scale effect to the layer और to the text. अब दोनों में डिफरेंस क्या आएगा हम वो देख लेते हैं एक बारी. लेट्स सपोज दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई द बाउंस लेयर इफेक्ट ऑन दी दिस पर्टिकुलर. अगर मैं लेयर के ऊपर डायरेक्टली करता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंकर पॉइंट बिल्कुल इसके बॉटम में प्लेस करेंगे. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिक्रीज द वैल्यू. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके पास कुछ लिंक का आइकन है, विच मीन्स whenever you are going to scale it up or down, it will scale up or scale down in a uniform proportion from both the side. That is आपके width और height दोनों सेम proportion में ही scale up scale down होंगे, जैसे अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना. बट मेरी अभी की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो हाइट है उसके ऊपर बाउंस इफेक्ट लगे. तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे अनलिंक कर दूंगा, एंड देन आप देख सकते हो यहाँ से आप इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो. सो इसको मैं यहाँ पे स्केल डाउन करने के लिए 0 कर देता हूँ. ओके, एंड आफ्टर दैट अगेन वी आर गोइंग टू प्ले इन फ्रेम्स. सो यहाँ से मैं कुछ 5 फ्रेम्स का गैप ले सकता हूँ. नाउ करेंटली यहाँ पे जो बाउंस इफेक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए हमने क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू जो है उससे कुछ वैल्यू थोड़ी अप ही रखेंगे, जैसे हमारा प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन रहता है स्क्वैश एंड स्ट्रेच. तो यहाँ पे स्क्वैश भी होगा स्ट्रेच भी होगा, ठीक है. तो यहाँ पे उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रख लेता हूँ पहले ही. फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल वैल्यू जो इसकी है दैट इज़ 100. सो आई हैव टू add a value little bit more than that. Let's assume that we are going to take the value of 120, right. Again 5 की फ्रेम्स का गैप.
20 वैल्यू जो हमने 100 में ऐड की है, नेक्स्ट की फ्रेम में हम क्या करेंगे, उस ओरिजिनल वैल्यू में से 20 माइनस कर लेंगे. नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 100, हमारे पास आता है कुछ 80, राइट. दैट्स वाई वो आपके पास जो स्ट्रेच वाला है ना एनिमेशन, वो क्रिएट हो पाएगा. तो यहाँ पे 80, अगेन 5 फ्रेम्स का गैप. अब इस वैल्यू को एक पॉइंट से, जहाँ पे हमारे पास पहले वैल्यू थी 120 और एक वैल्यू हमारे पास 80, और उसको इन बिटवीन लाने के लिए, जैसे एक की वैल्यू बहुत हाई है, एक की वैल्यू बहुत लो है, एंड इन बिटवीन मिडल में हमें लेके आना है. सो उस केस में व्हाट वी विल डू इज we will keep on decreasing the value from one point, and we will keep on adding the value from another point so that they meet at one certain point, right? So now earlier, let's see, okay, we have 120, then we have 80. now again 120 में से कुछ frames कम कर देते हैं या फिर कुछ values कम कर देते हैं, जैसे let's take a gap of 5 only, right? So right now I will subtract 5 points. अगेन 5 फ्रेम्स का गैप. 80 वैल्यू थी तो अभी उसमें 5 ऐड करेंगे तो 85 हो गया. 115 जो कि अब हो जाएगा कितना, 110. अर्लियर इट वाज 85, नाउ इट विल बी 90. अर्लियर द वैल्यू वाज 110 which will be now 105. Earlier the वैल्यू वॉज 90, अब क्या हो जाएगी 95. लेट्स सी 95, हाँ 90, 95. एंड नाउ लास्ट में जो 105 वैल्यू थी उसमें से 5 पॉइंट्स डिक्रीज कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा 10. सो इसको जूम आउट करते हैं एंड लेट्स सी किस टाइप की. अगेन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एन प्रेस कर देता हूँ और अपना वर्क एरिया इतना ट्रिम कर लेता हूँ. So now what we are going to do is we are going to play from the very start and see what kind of bounce effect has been created. So see, you can see this is the kind of bounce effect which we have created, right? अभी भी bounce थोड़ा सा मैकेनिकल है, मूवमेंट इतना स्मूथ नहीं है, प्लस इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है. तो स्पीड को इक्वल प्रोपोर्शन में, जैसे one thing is very much clear to me that okay, if I want to increase the speed of the animation, I have to decrease the gap in between the keyframes. अब सबको एक एक करके अगर मैं मूव करूँगा तो it will take a lot of time. So in order to escape from that particular point, what I can do is I can simply select all the keyframes, press and hold the Alt key, and let's move it to the left. अब यहाँ पे जो गैप क्रिएट होगा इनके बीच में, that will be in the equal proportion only, right? So now अगेन वर्क एरिया थोड़ा और ट्रिम करते हैं और अब प्ले करते हैं, तो अब कुछ इस तरीके से बाउंस इफेक्ट क्रिएट होगा. राइट. अभी इसकी एनिमेशन अगर आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा वो बाउंसी है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा बहुत हम और ऐड करने के लिए सभी कीज़ को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट एंड इजी ईज शॉर्टकट की F9. मोस्टली हम जब भी एनिमेशन ऐड करते हैं, एनिमेशन ऐड करने के बाद हम हमेशा अपनी की फ्रेम्स को इजी ईज कर देते हैं सो दैट कि उनकी जो मूवमेंट रहे काफ़ी स्मूथ रहे, कभी भी वो स्टैटिक या फिर मैकेनिकल ना लगे. मोस्टली अगर आप कोई भी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो एंड उसमें इजीज नहीं है तो बहुत ऑब्वियस है कि वहाँ पे जो मूवमेंट रहेगी दैट विल बी वेरी मच मैकेनिकल. So now let's play it and see what kind of animation we have created. Right, so this was the bounce effect which has been created using the layer property. Now again I'm going to add a text, या फिर इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं, नीचे वाले लेयर की विजिबिलिटी बंद करते हैं, एंड नाउ अगेन प्रेस द U की टू सी द की फ्रेम्स, डिलीट, गो टू द स्केल प्रॉपर्टी और इसको दोबारा 100 पे लेके आते हैं. राइट, इसको लिंक कर देते हैं. Now next thing what we are going to do is we are going to add the animate property here, and from the animate we are going to choose the scale option. Under the scale again we are going to unlink the
link icon, right? And after that choose the value of 0. अगेन रेंज सेलेक्टर में जाते हैं एंड अपने वैल्यू को एनिमेट करते हैं, जैसे यहाँ पे 0 है तो अगेन 100, ठीक है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, इजी ईज, ठीक है। अब अपने टेक्स्ट को थोड़ा नीचे प्लेस करते हैं, इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, और जो हमारे पास ये वाला टेक्स्ट था इसको हम ऊपर प्लेस करते हैं। चलिए दोनों को, राइट। अब चेक करते हैं कि दोनों की एनिमेशन में क्या डिफरेंस है। अब आप देख सकते हो कि की फ्रेम्स हमने लेयर पे भी लगाए हैं, की फ्रेम्स हमने टेक्स्ट पे भी लगाए हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि देयर इज ओनली हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू कैन गो फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमेशन ओनली। आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें सही गलत कोई नहीं है, इसमें इजी या डिफिकल्ट कोई नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ एनिमेशन यू वांट टू क्रिएट, राइट। सो अब इसको प्ले करके देखते हैं एंड सी व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट डिड वी गेट। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि दोनों की जो एनिमेशन है, दोनों में ही बाउंस इफेक्ट क्रिएट हुआ है, बट दोनों में जो इफेक्ट है वो दैट इज क्वाइट डिफरेंट। इफ आई गो एंड select this particular option, in this particular case you can see कि clearly जो एनिमेशन क्रिएट हुई है वो ओवरऑल आपके लेयर के ऊपर हुई है, बट कंपेयर्ड टू द एनिमेशन विच वी हैव क्रिएटेड इन द बॉटम वन, उसमें इंडिविजुअल टेक्स्ट के ऊपर आपके जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो रही है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। होप सो इट इज क्लियर टिल नाउ that how you can add bounce effect to your particular text, right। and दोनों में दो तरह के बाउंस कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। ओवरऑल लेयर के ऊपर आपने बाउंस इफेक्ट क्रिएट करना है तो वो कैसे कर सकते हो। ओवरऑल आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर, इंडिविजुअल टेक्स्ट के ऊपर क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, राइट। अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू कॉम्पोजिशन and this time let's choose this particular font, and under this again I'm going to go and choose the animate option. Under the animate I can choose the blur, so I can increase the blur amount. अब ब्लर की अमाउंट को इंक्रीज किया है, मैं इसको ब्लर कुछ कम नहीं करूँगा, बट इसकी रेंज को हम ज़रूर डिफाइन कर सकते हैं, अगेन स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी हम जो अपना ब्लर का इफेक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। देन अगेन वी विल क्रिएट अनदर टेक्स्ट इफेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक है, टाइटल्स में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो लेट्स टाइप सिनेमैटिक। आफ्टर दैट इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का जो वेट है वो थोड़ा हम कर देते हैं लाइट, सो दैट कि हमें ज़्यादा डेप्थ मिल सके उस पर्टिकुलर इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साइज थोड़ा कम कर देते हैं। आफ्टर दैट ओके, अलाइन पैनल पे हम जाते हैं और अपने टेक्स्ट को या फिर अपने लेयर को बेसिकली अपने कॉम्पोजिशन के सेंटर में प्लेस करते हैं। Now after that I will go and choose the animate. Under the animate I'm going to choose the tracking option. Now tracking option will do is that it will keep on increasing the space in between the characters। जैसे आपने कर्निंग सुना होगा, सेम हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे। अब
Yes, this is the major problem which you can face, right? I want the animation should start from the middle, but यहाँ पे आप देख सकते हो, if I undo it, तो यहाँ पे जब भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट साइड से इंक्रीज हो रहा है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं तो चाहता था कि मेरी जो टाइटल है एनिमेशन वो स्टार्टिंग हो बिल्कुल हमेशा उसके मिडल से ही स्ट्रेच आउट हो, मिडल से ही वो स्क्वीज हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि वो एक पर्टिकुलर कॉर्नर से स्ट्रेच इन हो रहा है या स्ट्रेच आउट हो रहा है। तो इफ यू आर फेसिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, what you have to do is you have to select your text, and after selecting the text go to the paragraph panel. If there is no paragraph panel, right, you are able to look at the text panel only but you are not able to search for the paragraph panel. What you have to go do is you have to go to the windows, under the windows you have to check for the paragraph panel, right? So यहाँ पे जितने भी panels हैं आपको सारे show कर देंगे। After that you have to make sure that your paragraph has been aligned from the center, not from the left, not from the right. It has to be aligned from the center, right? So now if I go and increase the राइस, तो यहाँ पे हम इस पे की फ्रेम लगाते हैं और एक इसको 2 सेकंड का गैप देके यहाँ पे इसको कर देते हैं 0, राइट? तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है एनिमेशन हो रहा है। अब इसको और ज़्यादा सिनेमैटिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी में टेक्स्ट के ऊपर, नॉट ऑन बेसिक टेक्स्ट, बट व्हाट आई विल डू इज आई विल नाउ स्टार्ट एनिमेटिंग द ओपेसिटी ऑफ द लेयर। तो थोड़ा आगे जाके यहाँ पे 100 और पीछे से जाके थोड़ा इसकी वैल्यू कर देते हैं 0। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव क्रिएटेड। ठीक है, अब यहाँ से अगेन इस पर्टिकुलर कीज को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, easy ease them and see how smooth did we get, right? So this is how you can create titles also, cinematic titles जो आपने मूवीज में बहुत बार देखा होगा। एंड यहीं से आप इसको एग्जिट इन और एग्जिट आउट कर सकते हो। करेंटली द वैल्यू इज़ 100, एक की फ्रेम ऐड करते हैं 100 की और यहाँ पे लास्ट में आके वो सेटल डाउन हो रहा है। तो यहाँ से ओपेसिटी अगर दोबारा 0 कर दें तो हम कुछ इस तरीके से भी अपने टाइटल्स को क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास और बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं दैट आई कैन चेंज द कलर ऑल्सो, आई कैन चेंज द ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कलर ऑफसेट, कलर वैल्यू, राइट? बहुत हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो आप जितना इसको एक्सप्लोर करोगे आपको उतना इसके बारे में आइडिया होता रहेगा, राइट? अब यहाँ पे एक लास्ट हम क्रिएट करते हैं इफेक्ट, हैकर। तो दिस पर्टिकुलर टाइटल, अब इस टाइटल को जस्टिफाई कैसे करें, राइट? बिकॉज मोस्टली जब हम हैकिंग के बारे में सोचते हैं या इसको विजुअलाइज करते हैं तो मोस्टली हमारे ब्रेन में क्या चलता है, कुछ डिफरेंट टाइप सेट ऑफ कोड्स, सम न्यूमेरिक करेक्टर्स, सम स्पेशल करेक्टर्स, कुछ ऐसे के करेक्टर्स हमेशा हमारे माइंड में चलते रहते हैं। सो सेम चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, एनिमेट पे गए and after the animate option what we can choose the character offset, right? So अभी इसको अगर हम यहाँ पे अगेन रेंज सिलेक्टर पे जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 1 सेकेंड एंड आफ्टर दैट इसको लास्ट में जाके। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बहुत ही हमने कूल काइंड ऑफ एनिमेशन क्रिएट कर दी है जो हमारे टाइटल को जस्टिफाई कर पा रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स। क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है,
These all are just tools, but what you can create out of it, it totally depends up to you. So keep yourself free of mind and keep on exploring that what you can create, what more you can create out of it. The tools are going to be the same for each and everyone, right? But how you are going to use that tool, that is going to make a big difference. मार्केट में जितने भी आप वीडियोस देखते हो टेक्स्ट एनिमेशन की, वो सभी सेम टूल से क्रिएट किए गए हैं जो हम यूज़ करते हैं. But the person who is using that particular tool and the way he is using that tool, that is where it, the game changes. So again, in the next session, we will be working on how to create some titles, how to create some headings, right? So वो text की animation हमने कैसे करनी है, वो उसके बारे में हम करेंगे. Till that, start practicing on creating different kind of visuals for the text, right? See you in the next session.